and demonstrated excellent individuals and organizations that have made significant contribution in their respective fields, talent and excellence in their respective fields. The Pride of Nation awards pay tribute to Indian success across all walks of life, celebrating inspiring achievements and highlights inspirational role models in the field of art, entertainment, social work, education, healthcare, business, politics, music, sports, wildlife conservation and environmental conservation. And yes, with that I have introduced you about the beautiful gathering that we have gathered here for and why we have gathered here for. But of course, before I invite our delegates on stage, before I even invite our chief guest on stage, we are going to have speakers, very well renowned speakers, and I would request all of you to please welcome them with a huge round of applause. Ladies and gentlemen, today in the Pride of Nation conference, we have the sectoral AI applications. The topics that we are going to discuss is the sectoral AI applications, AI and cyber security, key benefits, defense strategies and future trends, navigating global volatility, managing capital flows amidst shifting geopolitics, tariff regimes and supply chain realignments, governance and public services, AI-enabled citizen services, digital public infrastructure and improvements in legal and judicial systems, healthcare, early disease detection including heart-related conditions, AI in drug discovery and advanced diagnostics. And now, ladies and gentlemen, please put your hands together while I invite our speakers on stage. Put your hands together for Dr. Nishant Sawant, Director, Meta Infotech Limited. Key benefits, defense strategies and future trends. A very warm welcome to you, sir. Let's have a huge round of applause. Come on, ladies and gentlemen, give it up, give it up. Alright, moving on, our next speaker, we have Mr. Amit Kumar Yadav, Founder and Chief Marketing Strategist, Ekam Investment. Mr. Amit Kumar is going to talk about navigating global volatility, managing capital flows amid shifting geopolitics, tariff regimes and supply chains realignments. Moving on, it gives me immense pleasure to welcome our next speaker on stage. Please put your hands together for Dr. D. Manikandan, International Public Speaker, Governance and Public Services, AI-enabled citizen services, digital public infrastructure, and legal judicial system improvements is the topic that he's going to discuss about. Let's have a huge round of applause for Dr. D. Manikandan. Warm welcome, sir. And of course, last but not the least, we have Dr. Arvind Singh Gehlot, Senior Consultant Cardiac Surgeon. And he's going to talk on early disease detection, AI in drug discovery and diagnostics. Please put your hands together, ladies and gentlemen, while Dr. Arvind Singh Gehlot walks on stage with us, the Senior Consultant Cardiac Surgeon. Very warm welcome, sir. Check. Warm welcome, sirs. Warm welcome. So I'm going to first start with Dr. Nishant. So you're going to talk on AI in cybersecurity, so key benefits, defense strategies, and future trends. So I would like to first, I would request you to please initiate and tell us more about it. Thanks for introducing me. It was really a warm welcome for a warm day for which we are waiting for. And coming to the topic of about the cybersecurity, right? As you all might be aware that today the cybersecurity is the basic need of each and every person. Because right now everyone is earning and right now everyone has their own data. So data and wealth everyone is having, but to secure that, cybersecurity is the basic need. And when coming to AI, to our intelligence, so only AI is not going to go anywhere. Only AI is not going to
So AI is just collecting the data and giving you the analysis. That is what the main importance we need to understand. So we don't have to go and work under AI, work as per our regulations. So what do you, just out of curiosity, what is the common thread these days and how You AI? see the trend which is changing. Earlier we were reading books, we were reading newspapers, but right now we are just scrolling the reels, we are just scrolling, we are just listening the audio, and we are using the intelligence. So efforts are becoming less. So right now, if there is any of the news analysis, If you follow this instrument, then you can get good results. For that, you need the basic fund managers. You have to find out the fund managers is available across the world, but you know who can make the profit. You have to check they are the 5 years, 6 years portfolio, and if you think this fund manager is have the constant profit, so your portfolio also get the same. So my question to you is, what should an investor, how can an investor protect his capital when the market is volatile? Before entering in the market, you have to know that why you are entering in this particular instrument. If you know, if I especially talk now the gold is a more volatile market after BTC, because everyone know that now the Bitcoin is the most volatile in this world. But if currently I see that gold is the most volatile in this world. So before entering in the market, we have to know how, not only with the chart. Now chart is not working because fundamental is now 99.9% fundamental and just 0.1% technical. So when you enter in the market, so what the volume you are taking, what the lot size you are taking, if you control your lot size and the direction of the market, then your capital always is protected. And before entering in the market, you need to get some suggestions who is the registered authorized fund managers across the world. If you go for the SEBI, you go for the FCA, lots of fund managers available in the market if you search. And if you work on their guidelines, so of course you make the profit. Ladies and gentlemen, international public speaker, and the topics we have here is AI-enabled citizen services, digital public infrastructure, and legal judicial system improvements. Here we go. Alright, we have Dr. D. Manikandan here, and unfortunately, he's having some throat issues, so we won't be able to hear, but thank you so much, sir, for taking time out for us. And yes, with that, I'm going to move on to our next speaker, Dr. Arvind Singh Gehlot, Senior Consultant Cardiac Surgeon, Healthcare, Early Disease Detection, AI in Drug Discovery and Diagnostics is the topic we're going to discuss. And the moment I read cardiac surgeon, the one thing I remember is something that I... Sure, sir. So please. Hi, hello everyone. Good morning and good morning to Governor sir. I am talking to my experience of AI. It is mostly robotic cardiac surgery. 10 years back, I think my friend Nitin is also know robotic bypass like a myth was not doing. Nowadays it becomes so much reality. We are doing every month 1 or 2 cases robotic bypass, and I think from 4-5 years it will be like 50% of the surgeries doing by the robots and by the humans. And in robotic surgery, we do the surgery. Robots have done the surgery in the room. We operate from the console, and they are minimize whatever problem is in our hands. With the age, that robot will surpass all these things, and robotic bypass will be a future. It will be a very promising in our branch. I think we know all. It was a very much in myth only 10 years back, because bypass is way are doing beating hearts, how they will do. From robotic bypass it was very difficult. Nowadays it will be a possibility with the minimal invasive bypass. Very nice, sir.
In fact, recently my grandfather underwent a surgery like an AI heart surgery, and I was quite surprised. So that means AI is definitely beneficial in detecting early signs of heart diseases. That is sure. That is sure. There is no doubt about that. You give a symptom to them, they will early detection. But in reality, with the robotic machines and AI doing that thing, that works, 10 years back work, I can make money. Thank you so much, sir. Thank you for sharing your thoughts with us. And thanks to our speakers. With that, ladies and gentlemen, let us all once again have a huge round of applause for all our speakers present here. And thank you, sir. Thank you for being on stage with me. Thank you for sharing your thoughts. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. And Ms. Shrishti to kindly felicitate our delegates on stage. And of course, आपकी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए. And with that, I would first of all request Minister to kindly felicitate Shri Harirao Bhave sir, Honorable Governor of Rajasthan. Renewable energy and husbandry and dairy development, Government of Maharashtra. Let's have a huge round of applause. We have our delegates one by one. Please put your hands together, ladies and gentlemen, while I invite here at the podium Shri Sanjay Jadhav sir, Honorable Member of Parliament Lok Sabha Pradhani, Sanjay Harirao Jadhav sir, is an Indian politician and leader of the Shiv Sena. Yes, sir, I will request you to please say a few words. फ्रायडे ऑफ नॅशनल या संस्थेच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध क्षेत्रामध्ये चांगलं कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचा सन्मान केला जातो आणि त्या सन्मानाच्या संभाजीनगर येथील कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी यांच्या हस्ते आज हा सन्मान दिला जाणार आहे. त्यांच्या महाराष्ट्राचे पितामह भीष्म राजकारणातील एक मोठं व्यक्तिमत्व, विद्यमान राजस्थानचे महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ नाना बागडे साहेब, त्या राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय नामदार श्री अतुलजी सावे साहेब, दुसरे कॅबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय नामदार श्री संजयजी शिरसाट या ठिकाणी आलेले आहेत. ते कार्यक्रमाच्या अतिथी आहेत, ऑनदिवे आहेत, व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय, ज्यांचा सन्मान होणार आहे खऱ्या अर्थानं ते सर्व सन्मानार्थी, या कार्यक्रमाचे आयोजक आदरणीय अभिजित यादव आणि त्यांचे सर्व सहकारी, या सर्वांचं मी प्रथम मनपूर्वक स्वागत करतो. शेवटी मरावे परी कीर्ती उपयोग राहतो. आयुष्यामध्ये माणसानं काहीतरी चांगलं काम करण्याचा मानस ठेवला पाहिजे आणि ह्या ठिकाणी जी सन्मानित व्यक्ती आहे ती काहीतरी आयुष्यामध्ये चांगलं काम करून इथे सन्मानापर्यंत पोहोचल्यात, यामध्ये काही दुमत नाही. त्यामुळं त्याच्या पाठीवर शाबासाची थाप मारणं हे मोठ्याचं काम असतंय आणि एखादी NGO अशा पद्धतीचा कार्यक्रम घेऊन समाजातल्या चांगलं काम करणाऱ्या व्यक्तीचा जर सन्मान करणार असेल, ती करत असेल तर तिचा निश्चित आपण गौरव केला पाहिजे. मी या संस्थेला खूप खूप शुभेच्छा देतो की ज्यांनी एक चांगलं कार्य हाती घेतलेलं आहे. असंच आपल्या हातून समाजाची सेवा घडत राहावी. ज्या ज्या व्यक्तींना या ठिकाणी हा सन्मान दिला जाणार आहे त्या सर्व सन्मानार्थींचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आयुष्यामध्ये आपल्याला असंच चांगले यश मिळत राहावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपला जास्त वेळ न घेता या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने आयोजकांना मनापासून धन्यवाद देतो. या ठिकाणी तुम्ही आम्हाला बोलवलं, निमंत्रित केलं त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Stage on the podium, Shri Atul Save sir,
Honorable Minister of Renewable Energy, Animal Husbandry and Dairy Development, Government of Maharashtra. Atul Save sir is an Indian politician and the senior leader of the Bharatiya Janata Party from Maharashtra. He serves as a member of the Maharashtra Legislative Assembly representing the Chhatrapati Sambhaji Nagar East, formerly Aurangabad East constituency. He holds cabinet portfolios including other backward Bahujan welfare, dairy development, renewable energy, and persons with disabilities welfare. He is also the guardian minister for Nanded. Please put your hands together and welcome Shri Atul Save sir. It's 5 minutes for 12 o'clock. That's why good morning. Asia Today presents Pride of Nation इस अवार्ड सेरेमनी के इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे राजस्थान के गवर्नर महामहिम ऑनरेबल हरिभाऊ बागड़े नाना जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय यादव जी यहाँ पे उपस्थित, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे प्रदीप चौधरी जी, नितिन यादव जी और आल जो सभी को आज यहाँ पे सम्मानित किया जाने वाला है, अवार्ड मिलने वाला है, ऐसे सारे अवार्डीज, सारे डिफरेंट फील्ड में से आए हुए डिग्निटीज और सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि एशिया टुडे अ फॉर्म फ्रॉम दिल्ली, इफ आई एम नॉट करेक्ट, ये फॉर्म फ्रॉम दिल्ली, आपकी हमारी फोन पे ही बात है, पर आपने हमको बोल दिया कि महामहिम साहब आ रहे, तो हम बोला यस आ जाइए। तो अपने ऑनरेबल गार्डियन मिनिस्टर, हमारे नेता कलीग संजय शिरसाट साहब का यहाँ पे आगमन हो रहा है, मैं उनको तालियां बजा के सबने उनका स्वागत करें। संजय जी, आपकी परवानगी असेल तर मी माझं भाषण कंप्लीट करतो। उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहकारी माननीय संजय शिरसाट जी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इट्स अ ग्रेट इंडीड प्लेजर कि आप यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में जिसने अच्छा काम किया है, जिसने अपने कार्यकाल में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फील्ड में सबने जिन्होंने उनका काम किया, उनका आज यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है। मैं एशिया टुडे का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे इस छत्रपति संभाजी नगर एक डेवलपिंग सिटी है, एज राइट नाउ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर कमिंग, जैसे डीएमआईसी में जेएसडब्ल्यू है, टोयोटा किर्लोस्कर है, अथर है, पिरामिल है, कॉस्मो है, lot of such industries, multinational companies are coming, even Tata going to come. तो ऐसे समय में सिटी की जो ग्रोथ है और ग्रोथ सिटी में जो अच्छा काम करता है, उसको कहीं ना कहीं इस फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, इस महाराष्ट्र के क्षेत्र में जिसने अच्छा काम किया, उनको यहाँ पे आज आप अवार्ड करने वाले हो। और मैं एशिया टुडे का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस हमारे शहर के, इस मराठवाड़ा के, इस महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र के आज डिग्निटीज को यहाँ पे आप उनका सम्मान करने वाले हो। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस प्रोग्राम में आपने हमको बुलाया और इस प्रोग्राम का एक पार्टिसिपेट करने के लिए हमको चांस दिया, इसलिए आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट आए हैं, कुछ सुबह से प्रोग्राम, सभी हम एक ही प्रोग्राम में थे, बट वहां पे फिर आखिर में गवर्नर साहब ने बोला कि नहीं पहले अपन चलते, संजय शिरसाट आपको बोला कि समारोह करके आओ, तो वो समारोह करके आए, इसलिए हमें तो लेट आने की वजह और कोई नहीं है। बट मैं सभी आज डिग्निटीज जिनका यहाँ पे सम्मान होने वाला है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बाकी लोगों को बोलूंगा यू शुड टेक देम एज अ आइडियल एंड वर्क फॉर इन फ्यूचर टू सो दैट दे कैन बी ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर द टुडेज दिस एशिया टुडेज अवार्ड। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you for those wonderful and motivational words.
And with that, ladies and gentlemen, again, it gives me immense pleasure to invite our next speaker. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for Shri Sanjay Shirsat, sir. And of course, before I introduce him, I would also request the Managing Director of Asia Today Media, Mr. Pradeep Chaudhary, to kindly welcome Shri Sanjay Shirsat, sir. Ms. Shrishti on stage. Thank you so much. Ladies and gentlemen, Honorable Minister of Social Justice, Government of Maharashtra, Shri Sanjay Pandurang Shirsat is an Indian politician and a leader of the Shiv Sena. He serves in the Government of Maharashtra and as a member of the Legislative Assembly representing the Chhatrapati Sambhajinagar, formerly Aurangabad West constituency. He has represented the constituency for 4 consecutive terms since 2009. I request all of you to please put your hands together and welcome Shri Sanjay Shirsat sir to say a few words. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय महामहिम राज्यपाल हरिभाऊजी बागडे साहेब, माझे सहकारी अतुलजी सावे, खासदार संजय जाधव, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला त्यांचे सर्व पदाधिकारी, सही मायने में ये कार्यक्रम लिमिटेड लोगों के लिए, अब लिमिटेड लोग जो इस महाराष्ट्र के कार्यक्षेत्र में काम करते हैं उनका सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया है। यहां बैठे सभी गणमान्य जो व्यक्ति है उनकी हर एक अपनी अलग से पहचान है। अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, और जो कुछ नहीं होगा तो वो पॉलिटिशियन होगा। और वो पॉलिटिशियन स्टेज पे बैठे काम करते वक्त आपने भी काम किया है, हम भी काम करते हैं। फर्क इतना है, आप पर्दे के पीछे काम करते हो, काम करते वक्त एक लगन से काम करते हो और उसका जो आउटपुट जिसे कहते हैं वो सालों गिनती के बाद, कई साल गुजारने के बाद लोगों में अपनी छवि जाती है। सेम थिंग है, हम भी लोगों को, आप आपके कार्यक्षेत्र में काम करते हो, किसी को 10 साल होंगे, 15 साल हुए, 20 साल होंगे, या हमारे में सबसे सीनियर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल, करीबन 50-55 साल से इस राजनीति में है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप कोई भी काम एक लगन से करते हो तो उसके लिए एक वक्त ऐसा भी आता है कि एक स्टेप आगे जाके आदमी की उन्नति भी होती है, प्रगति होती है और उसका नाम भी होता है। मैं राज्यपाल साहब का नाम इसलिए लिया है कि राज्यपाल साहब एक खेती से जुड़े हुए इंसान, एक एक कदम चलते चलते बढ़ते बढ़ते आज राजस्थान के राज्यपाल हो सकते हैं, ये सोचना भी उस वक्त जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, उस वक्त सोचना भी मुश्किल वाला काम था, सोच भी नहीं सकते थे। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप में भी वो जिद और वो हुनर होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र में रहो आप, एक जुनून, पैशन जिसको कहते हैं, वो अगर आप में है तो उनका समाज कहीं ना कहीं उसको याद रखता है और उसका आज जैसा इस कार्यक्रम में आपको सम्मानित किया गया है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये सम्मान आपको मिलने के बाद आपके प्रगति में बहुत सारा चेंजेस आएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मेरे कार्य को किसी ने अप्रिशिएट किया है, ये बहुत सबसे बड़ी बात होती है। और इसलिए आप
आप सभी को मैं गार्डियन मिनिस्टर के नाते शुभकामना तो देता हूं, लेकिन आपसे उम्मीद भी करता हूं, ये जो भी क्षेत्र में आप होगे उसका समाज में और अलग तरीके से उसको, जिसको सामने लाना कहते हैं, वो आपका और आना चाहिए। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं। लास्ट वीक में एक जगह पे गया था, सिन्नर तालुका है, नासिक जिले में। एक लड़का डॉक्टर है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उसका जो व्यंग रहते हैं बच्चों में वो सीधा करने का काम करता है। वो नेचुरल थेरेपी जो कहते हैं, वो उसके पास वो पीड़ित जात आई है और रोज उसके पास 200-300 पेशेंट आते हैं। कोई फीस नहीं, खाने की व्यवस्था करता है वो। जो कुछ हमारे जैसे, कुछ तुम्हारे जैसे लोग जो भी उसको सहकार्य करते हैं, उसमें गुजारा चलता है। लास्ट वीक जब मैं वहां गया तो देखा कि हर एक जो उसके पास पेशेंट आए थे, उसके हाथ में वो 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा जो अपाइज है किसी चीजों से, वो सब वहां थे। मैं वहां जाने के बाद मुझे लगा कि एक कार्यक्रम को जा रहा हूं तो कुछ तो अलग होगा, अच्छा होगा, लोग होंगे। लेकिन जब वो पीड़ा से जो ग्रस्त थे वो लोग, वो बच्चों को जब मैंने देखा तो मैंने ये समझ में आया, जिंदगी में दिखावा एक अलग चीज होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इतना दुख है जो ये डॉक्टर वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे भी जब लोग देखते हैं तो खुद के ऊपर भी थोड़ा सा शर्म आती कि अपन तो बहुत पीछे है, ये लोग अपने से आगे। ये सोचना चाहिए। तुम्हारे पास जो टेक्निक है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुम्हारे पास जो भी हुनर होगा, उसको समाज में अच्छी तरह से पेश करना, ये आपकी भी जवाबदारी है। राज्यपाल जी यहाँ, महामहिम राज्यपाल जी आए हैं, उन्होंने भी उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र में जब भी अनेक क्षेत्रों में काम किया, हम उनको हमारा आदर्श मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने जब से जो काम शुरू किया था उसी तरीके से कंटिन्यूशन में जो आप देखेंगे, राज्यपाल है यहां तो नगर पालिका का नगर सेवक होने के बाद तो ऐसा आदमी कुछ उसके अंदर चेंजेस आते हैं, वो जमीन पर पैर ही नहीं रखता। ऐसे भी लोग हैं और अपने पास आदर्श राज्यपाल भी है जो जमीन पे पहले से पैर अपना वहीं रखा है और आज भी वो जमीन से जुड़े हुए। तो वो उसी में से आप लोग भी है। मुझे लगता है आपका जो सत्कार यहाँ किया गया है, सही मायने में मेरे शहर के लिए, मेरे जिले के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सबको तहे दिल से शुभचिंतन करता हूं, आपका सही मायने में अभिनंदन करता हूं। भविष्य में भी आपकी तरफ से बहुत सारी उम्मीदें हम जैसे सभी लोगों को है और वो आप पूरे करेंगे, इस आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। एंड आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं अभी यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी हमारे माननीय चीफ गेस्ट को। लेडीज एंड जेंटलमैन, माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशनराव बागड़े जी का जन्म ऋषि परिवार में हुआ। आप आरंभ से ही जन सेवा के सरोकारों से जुड़े रहे हैं। समाज सेवा, कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में आपका योगदान ही नहीं बल्कि आपने इन क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया है। माननीय राज्यपाल महोदय की ग्रामीण विकास में भी गहरी रुचि है। कमजोर और पिछड़े वर्ग के कल्याण तथा महिला सशक्तिकरण के लिए आपने निरंतर कार्य किए हैं। महाराष्ट्र में आपकी एक बड़ी पहचान ये भी रही है कि वहां सहकारिता आंदोलन को आपने गति दी। किसानों को दूध से संबंधित व्यापार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया और दूध वितरण को आपने निरंतर बढ़ावा दिया। गन्ना किसानों के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हुए
उन्हें उनकी फसल का उचित लाभ प्रदान करने के लिए गन्ने कारखाने स्थापित किए। और बात करें विधानसभा की, लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 नवंबर 2014 को आप महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपने सांसदीय कार्य प्रणाली और विधायी मर्यादा को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य किए। Ladies and gentlemen, please put your hands together while I invite our very own, our chief guest. Please join me in giving a warm welcome to our Honorable Governor, Shri Haribhau Bagre sir. मंच पर उपस्थित संभाजीनगर जिला के पालक मंत्री संजय जी सिरसाट, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री अतुल जी सावे, परभणी के मेरे खासदार संजय जी जाधव, संयोजक प्रदीप जी चौधरी, यहाँ उपस्थित पद्मश्री जनार्दन बाबूराव भोबे, पद्मश्री श्रीरंग देवबा लाड, लाड तो मला दिसत नाही कुठे, विविध क्षेत्र में अपने जो अच्छा काम किया, उत्कृष्ट काम किया, उन्हीं को जो पुरस्कार दिए वो सभी मीडिया बंधु, छायाचित्रकार बंधु और भगिनीनों, आज जो यहाँ एक पुरस्कार देने वाले जो है ये हमारे संयोजक प्रदीप जी चौधरी, ये मुझे जयपुर में मिले थे और उन्होंने आग्रह किया था कि हम पद्मश्री जिनको मिले वह कुछ और पुरस्कार मिले और हम भी कुछ पुरस्कार दे रहे विविध क्षेत्र के लोगों को, वो अपने हाथ से देना है और वो मुंबई में देना है। लेकिन मुझे मुंबई में देने का सवाल है, मैं बोला मैं तो 17 तारीख से 16 तारीख से 21 तारीख तक संभाजीनगर हूं और उसके बाद फिर मुंबई और एक दिन बढ़ जाएगा मेरा, तो आप संभाजीनगर में कार्यक्रम करते होंगे तो मैं जरूर आपकी विनंती स्वीकार करता हूं। तो उन्होंने वो भी माना, नहीं तो ये कार्यक्रम सब मुंबई में होने वाला था, तो मैं उन्हीं का भी आभार व्यक्त करता हूं, इसीलिए कि वो मेरे कहने से इन्हें यहाँ संभाजीनगर में कार्यक्रम रखा है। आज प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड 2026 के इस गरिमामय समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं इस भव्य आयोजन के लिए प्रदीप चौधरी, श्री सिटी त्यागी और पूरी टीम का मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसके आर्थिक प्रगति पर नहीं है, बल्कि उन लोगों में जो अपने कर्म, प्रतिभा, ईमानदारी, सेवा भाव समाज और देश के आगे बढ़ाने की कर्मयोगिता जो पहचानता है उसका सम्मान किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले चैंपियन से। Please put your hands together for Padma Shri Janardhan Bapurao Bothe, Pride of Nation Award Social Activist. और मैं चाहूंगी कि
हम सब चाहेंगे इनफैक्ट कि तालियां बजती रहनी चाहिए। आपका भी अवार्डेड हियर। और मैं हमारे सारे अवार्डीज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सेंटर स्टेज से आए और मेरी लेफ्ट से यहाँ से एग्जिट करें। सेंटर स्टेज से आए और यहाँ से एग्जिट करें प्लीज। थैंक यू। क्या बात है, व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कंग्रेचुलेशन। हमारे साथ है स्टेज पर पद्मश्री जनार्दन बापूराव बोथे, प्राइड ऑफ नेशन सोशल एक्टिविस्ट। कंग्रेचुलेशन श्री रंग देवबा लाड, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड एग्रीकल्चर। हमारे बीच में वो अभी मौजूद नहीं है, बट आई स्टिल हैव टू मेंशन हिज नेम। थैंक यू वेरी मच। Moving on, our next champion is none other than Dr. Nishant Sawant, Cyber Security Icon of India 2026. Congratulations, we've already shared the stage and we have heard so many insights from Dr. Nishant. Such a privilege to have you here with us, sir. Thank you. Moving on, our next champion is Mr. Amit Kumar Yadav, Excellence in Chief Market Strategist. तालियों की आवाज नहीं आ रही है। People, put your hands together. Come on. I'm sure आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जब आपके अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। That's what happened. Shinkawalli, Best Robotic Surgical Oncologist of the Year, Telangana. Maulana Mukhtar Ahmed Nadwi Technical Campus, Most Trusted Engineering College of the Year, Maharashtra. एग्जिट ना करें क्योंकि हमारी मीडिया यहाँ सामने पेज के सामने है, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। आप प्लीज मेरे लेफ्ट हैंड साइड से एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू। Moving on, our next champion is the National Excellence Award for Non-Surgical and Drug-Free Recovery from Back Pain and Sciatica, and the award goes to your Pain Fixer Chiropractic Therapy Center. अगले आ रहे हैं हमारे बीच डॉक्टर डी मणिकंदन, यंग अचीवर अवार्ड ऑफ द ईयर goes to of course डॉक्टर डी मणिकंदन। Congratulations to you. Moving on, this is very exciting of course because it's about aviation. The best aviation college in India is none other than Remo International College. Congratulations. आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले चैंपियन को बुलाते हैं स्टेज पर, जो कि है हेल्थ केयर एक्सीलेंस इन कार्डियक सर्जरी महाराष्ट्र, एंड ही इज नन अदर देन डॉक्टर अरविंद सिंह गहलोत। We also have a lovely lady on stage. Congratulations. And on stage with us we have Dr. Arvind Singh Gehlot. Congratulations, Doctor. Moving on, हमारे अगले सुपरस्टार आ रहे हैं for the best super speciality hospital in Marathwada, Central Maharashtra, and the award goes to JJ Plus Hospital and Neuron International. Congratulations. I would request our next awardees to kindly be present near the stage. एक बार जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, we have the last few awards left. आपको खूब सारी तालियां बजानी है। अगले आ रहे हैं the best organization for fire safety and security training and services in Andhra Pradesh, and the award goes to none other than IIFSC Group. SC Group is our next champion.
is for the most trusted brand for fireman evacuation lift company, and the award goes to Aditya Engineering. Congratulations, sir. हमारे अगले चैंपियन है for healthcare excellence in cardiac surgery, and the award goes to, please put your hands together for Dr. Nitin Pradeep Gundre. Guys, we're still in the first half of the morning. We can give it up. We can give it up. Dr. Nitin Pradeep Gundre is here with us on stage. Congratulations for healthcare excellence in cardiac surgery. आगे बढ़ते हैं. The next category is Social Development Leader Award, and the award goes to none other than Mr. Vishwanathan Narayan. लीडर का, जो कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, पोएट भी हैं, लिखते भी हैं, क्या बात है, और बहुत अच्छा बोलते भी हैं. कंग्रेचुलेशन. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव बेस्ट सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर तेलंगाना, एंड द अवार्ड गोज टू डॉक्टर अजीत कुमार आजाद. Again, it gives me immense pleasure to invite our next champion on stage. Excellence in orthopedic spine surgery. Jordar taaliyan ho jaye. Yes, I think you all can give it up for all the champions coming up on stage. Keep the applause coming, ladies and gentlemen. Next up, we have the Best Engineering College for Academic Excellence, Sambhaji Nagar, Maharashtra, and the award goes to none other than Aurangabad College of Engineering. जाते हैं हमारे अगले सुपरस्टार को स्टेज पर, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द एक्सीलेंस इन कस्टम एक्सट्रूशन सॉल्यूशंस, एंड द अवार्ड गोज टू, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ग्लोरिया एल्यूमिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए जोरदार तालियां हो जाए. एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर, oh my god, it is one of my most favorite category, excellence in women entrepreneurship. Please put your hands together for the beautiful Ms. Poonam Gupta. And congratulations. Moving on, ladies and gentlemen, with that, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज सब स्टेज पर रहें. सबसे पहले ऑफ कोर्स श्री हरिभाव बागे सर, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप यहाँ पर आए और आपने 4 चांद लगा दिया हमारे स्टेज. श्री अतुल सावे सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट. आगे बढ़ते हुए, जब तक आएगी नहीं हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं. संजय शिरसागर, Honorable Minister of Social Justice, Government of Maharashtra. And I request Mr. Pradeep and Ms. Srishti to kindly felicitate Shri Sanjay Shirsar. Thank you very much. I have to add that he's the current member of parliament representing the Parbhani Lok Sabha constituency in Maharashtra. Ladies and gentlemen, please put your hands together while we welcome Shri Sanjay Jadhav, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Parbhani, Government of India. अपनी beautiful शुरुआत की थी आज के दिन की. I request everyone to please rise once again for the national song, followed by the national anthem. जे प्लस हॉस्पिटल अभी लोकल से ग्लोबल हो चुका है, और जहाँ पर मेडिकल टूरिज्म माने कि पूरी दुनिया यहाँ पर आना चाहती है, और वहाँ पर जे प्लस हॉस्पिटल ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, वो पीडियाट्रिक हो या अडल्ट हो, कार्डियक हो या न्यूरो हो, जॉइंट हो या कैंसर हो, सभी का जो इलाज है हाईली क्वालिफाइड NABH एक्रेडिटेड के साथ जो चल रहा है, उसके आधारित आज 2026 का जो एशिया टुडे का अवार्ड है वो माननीय राज्यपाल जी हरिभाऊ राणा जी के साथ में दिया गया. उसके लिए मैं एशिया टुडे का और आप सभी का जो आपने ट्रस्ट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. और इसी
इसी एंगल से हम आप सभी का ट्रीटमेंट भविष्य में देंगे और इसलिए आप सभी ने अपने साथ में रहना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन से क्षेत्र में किया गया है, क्या? ये अवार्ड बल्कि साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में मिला गया, मगर जैसे आपको सबको पता रहेगा साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बेसिक नीड आज की तारीख में। जैसे हम अभी पैसा कैरी नहीं करते हैं, हमारे पास ई वॉलेट है, वैसे ही ई सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ बेसिक नीड। और ये सिक्योरिटी के कारण ही हमारा पैसा, हमारा डेटा सब कुछ सेफ रह सकता है। और जैसे ही आप सबको पता है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग डिजिटली, तो डिजिटली ग्रो करते समय सिक्योरिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ग्रोथ का। आने वाली नई जनरेशन जो आज एआई की तरफ भाग रही है, क्या मैसेज है? ज़रूर, बेसिकली एआई इज़ अ बेसिक नीड जो हर एक क्षेत्र में होगी। तो करियर वाइज मैं कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र बहुत ही वाइड क्षेत्र है, जहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हर एक क्षेत्र में मिलेगी, बिकॉज एआई इज़ अ बेसिक नीड। और जब एआई और साइबर सिक्योरिटी एक साथ हो जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है, जैसे कि बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, इन्वेस्टमेंट है, सभी क्षेत्रों में आपको जॉब गारंटी मिल जाती है। पुलिस सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, तो आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सब जगह पे आप काम करके आपका योगदान दे के देश को आगे बढ़ा सकते हैं। Your good name, sir? डॉक्टर निशांत सावंत। Thank you. सर, क्या कहेंगे आज जो आपको एशिया की तरफ से, मीडिया तरफ से अवार्ड दिया गया है, कौन से क्षेत्र में दिया गया है, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अवार्ड हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला है और मैं समझता हूँ ये रिकग्निशन जो है, ये अवार्ड इन ड्यू टाइम मिला है फॉर द रिकग्निशन फॉर द वर्क दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 14 ईयर्स। हमारा कॉलेज जो है महाराष्ट्र में मालेगांव में आता है और एसपीपीयू से एफिलिएटेड है। तकरीबन 125 इंजीनियरिंग कॉलेज आज एसपीपीयू के अंडर एफिलिएटेड हैं और हमारा कॉलेज जो है ये यंगेस्ट है और मुसलसल पिछले 6-7 साल से यूनिवर्सिटी टॉपर्स, मेरिट लिस्ट होल्डर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, रैंक होल्डर्स आज मालेगांव जैसे एक छोटे शहर से, वो शहर जिसे आप तालीम मतलब एक इंजीनियरिंग एजुकेशन से नहीं जोड़ सकते, लेकिन वहाँ से आज इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में फुल स्कॉलरशिप, इनफैक्ट स्टाइपेंड के साथ एडमिशन ले रहे हैं, गेटिंग इनटू यूएस, दे गेटिंग इनटू यूरोप, दे गेटिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ कंपनीज़ में रिक्रूटमेंट हो रहा है। और इसी तरीके से हायर एजुकेशन में इंडिया में अगर बात की जाए तो IITs में, NITs में एडमिशन हो रहा है। एंड इसका पूरा बेसिस जो है वो हमारा स्टाफ है, विच वी आर अ हाईली क्वालिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा स्टाफ, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो लाइक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरियस IITs, NITs, तो जब हमारा स्टाफ ऑलरेडी बेस्ट ऑफ द नेशन से आता है तो वो हमारे बच्चों को ट्रेन करने में काफ़ी काम आता है और उस हिसाब से जो ओवर द इयर्स हमें सक्सेस मिली है, दिस इज़ इन ड्यू टाइम अ गुड रेकॉर्ड। माय नेम इज़ राशिद मुख्तार। यस मैम, क्या कहेंगे, एशिया टुडे मीडिया का औरंगाबाद संभाजी नगर में अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम हुआ है, बेहतरीन हुआ है, किन किन क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं और गेस्ट कौन थे? आज एशिया टुडे मीडिया ने प्राइड ऑफ नेशन एडिशन किया है संभाजी नगर औरंगाबाद में, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे श्री हरिभाऊ बागड़े जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान, श्री अतुल सावे जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री संजय सिरसट, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री संजय जाधव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज इस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ ये चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे। आई वुड लाइक टू थैंक श्री हरिभाऊ बागड़े जी, जिन्होंने आज इस इवेंट में आके इस मंच की खूबसूरती को और बढ़ाया है। एशिया टुडे मीडिया लास्ट 13 ईयर्स से कॉन्फ्रेंसेस एंड अवार्ड सेरेमनीज ऑर्गेनाइज कर रही है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। ये अवार्ड सेरेमनी हमारा संभाजी नगर औरंगाबाद में था, एक महाराष्ट्र एडिशन था, जिसमें हमने महाराष्ट्र के एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को अवार्ड फेलिसिटेट किया है। एशिया टुडे मीडिया को बहुत ही अच्छा लगा संभाजी नगर में आके, इतनी खूबसूरत जगह में आके हमने अवार्ड
फेलिसिटेशन किया। हमारे अवॉर्डीज महाराष्ट्र के अलग अलग कॉर्नर से आए हुए थे, डिफरेंट सिटीज से आए हुए थे, जिनको हमने संभाजीनगर औरंगाबाद में अवार्ड फेलिसिटेट किया है। कितने लोगों को अवार्ड दिया गया? सो आज हमारे बीच 20 अवॉर्डीज थे, जिसमें पद्मश्रीज थे जिनको 2026 इसी पद्मश्री अवार्ड से फेलिसिटेट हुए हैं। जो इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ एजुकेशन सेक्टर से थे और बिजनेस सेक्टर से थे। एशिया टुडे मीडिया का क्या थॉट है इन लोगों को अवार्ड देने का? सो एशिया टुडे मीडिया एक इस तरीके का मंच बनाना चाहता है, जो लोग अपने ही क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, लोग उनको जानते नहीं हैं। तो एशिया टुडे मीडिया का मोटिव है कि हम इस तरीके का मंच बनाएं जहां पर अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज़ के वो लोग आ पाए, ताकि लोगों को पता चले कि वो अपने सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ कार्डियक सर्जन्स थे जिन्होंने कितनी सक्सेसफुल बाईपास सर्जरीज की है, जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज से उन्होंने स्टडीज़ की है, अलग अलग कंट्रीज़ में वो जाते हैं। तो इस तरीके का हम लोग एक मंच तैयार करना चाहते हैं जिसमें हम उन्हें अवार्ड फेलिसिटेट कर पाएँ। एशिया टुडे ने और इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ कौन सी कंट्री में अवार्ड? सो हम लोगों ने दुबई, सिंगापुर एंड लंदन में अवार्ड फेलिसिटेट करा है। अभी हमारा नेक्स्ट इवेंट भी है इंडो यूके लीडरशिप कॉन्क्लेव, जो हम लोग 28 सितंबर को यूके पार्लियामेंट लंदन में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हमारा 2nd एडिशन है। सो यूके पार्लियामेंट में अवार्ड करने का हमारा मोटिव था कि जो हमारे इंडियंस हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं यूके के अंदर, या फिर जो ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा है यूके के अंदर, या वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेयर्स रहेंगे यूके से। 10 अदर कंट्रीज के हमारे पास चांसलर्स एंड मेयर्स रहेंगे। तो इंडिया से जो भी हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स, हमारे एजुकेशनिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन्हें एक मंच देना चाहते हैं कि वो अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो उनके अपने बारे में वहाँ बता सकते हैं। तो एक अवार्ड सेरेमनी के साथ एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपने बारे में वहाँ बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड योर गुड नेम है? So myself Srishti, I am working as a director for Asia Today Media Group. Thank you very much. Thank you.